हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में पहले जितना हम फॉर्मूले मैंने आपको भेजे थे व्हाट्सएप में, आपने लर्न कर लिए होंगे। और पहले जो +1 में किया हुआ है थोड़ा सा उसका रिवीजन, ठीक है। सिंपल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं। पहले y इज इक्वल टू x² + 3x + 5। तो हेयर वी हैव to use the formula x raised to the differentiation of x raised to the power n, and we know that differentiation of x raised to the power n is equal to n into x raised to the power n minus 1. So from this formula differentiation of x square is 2 into x raised to the power 1, that is 2x, plus differentiation of 3x is 3 and differentiation of 5 is 0. Why differentiation of 5 is 0? Because it is a constant term, and differentiation of a constant term is always 0. Because for example, मैं आपको इसको एग्जांपल से समझा देती हूँ। अगर यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म हमें लिखी, जैसे फॉर एग्जांपल 2, वी कैन राइट इट एज 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, एंड बाय द फॉर्मूला एक्स रेज टू द पावर n, व्हेन वी डिफरेंशिएट इट, इट बिकम्स 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर -1, and 0 into anything becomes 0. It means differentiation of any constant term is always 0, and differentiation of x is 1. Therefore differentiation of x square plus 3x plus 5 is always 2x plus 3. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जितने भी हमारे पास अलग अलग फंक्शन है, 3x³ प्लस 4x² प्लस sin x प्लस 2 रेज टू द पावर x, उसका डिफ्रेंशिएशन सिंपल फॉर्मूले अप्लाई करते जाना है और करते जाएंगे। अब x³ का डिफ्रेंशिएशन होगा 3x², तो 3x² इंटू 3 बिकम्स 9x², 4x² का डिफ्रेंशिएशन 8x, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, 8x, and differentiation of 2 raised to the power x is, here we have to apply the formula differentiation of a की पावर x, and that is a raised to the power x log a. तो it is 2 raised to the power x log 2, ये डिफ्रेंशिएशन होगा इसका, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रूल्स आते हैं डिफ्रेंशिएशन के। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट रूल। For product rule we have two functions, fx into gx. When we have to differentiate this function, we have to apply the product rule, and product rule is fx multiply by first function as it is, multiply by differentiation of second function, plus second function as it is, multiply by differentiation of first function, or we can write it as fx into g dash x. G dash x is the differentiation of gx, plus gx into f dash x. Okay, for example, if we take a function y is equal to x into e raised to the power x, then by product rule first function as it is, differentiation of e raised to the power x is e raised to the power x, plus e raised to the power x as it is, differentiation of x is 1, तो it is x into e raised to the power x plus e raised to the power x, बस, ठीक है। Similarly second rule is division rule। Division rule is means here we have two function in where one function divide second function, y is equal to fx over gx, and in division we have firstly denominator as it is, keep in mind firstly denominator as it is, into differentiation of numerator minus numerator as it is into differentiation of denominator, means gx as it is into f dash x minus fx multiply by g dash x divided by whole square of denominator, that is gx का whole square. अब सेम एग्जाम्पल इज देयर, y इज इक्वल टू, नाउ वी टेक x ओवर e की पावर x। वहाँ ऊपर एग्जाम्पल में ये मल्टीप्लाई में फंक्शन थे, अब मैंने डिवीजन में लिए हैं x डिवाइड बाय e की पावर x, एंड व्हेन वी डिफ्रेंशिएट इट वी गेट
e की पावर x as it is into differentiation of x that is 1 minus x as it is into differentiation of e की power x that is e की power x divided by denominator square. It means e raised to the power 2x. Here we can take e raised to the power x common, then we get 1 minus x over e की power 2x. 1 e की power x is cancelled और the answer is 1 minus x over e raised to the power x. तो वो तो चलो आंसर है, लेकिन आपने रूल में क्या याद रखना है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर. एंड द नेक्स्ट इज एंड द मेन इज चेन रूल. इन चेन रूल वी हैव द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस. एंड कंपोजिशन अभी आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है तो इसको सिंपल एग्जांपल से ही पढ़ाती हूँ मैं. जैसे यहाँ आपका है y इज इक्वल टू साइन 3x. एक एग्जांपल ले लिया मैंने, y इज इक्वल टू साइन 3x. हेयर वी हैव 3x इन स्पेस ऑफ x. साइन x का डिफ्रेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम 1 बाय 1 डिफ्रेंशिएशन करते हैं. जैसे साइन, पहले साइन का करेंगे. डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x इज cos x. In here 3x replace the x, therefore differentiation of sin 3x is cos 3x multiply by जो भी टर्म x की जगह है उसका हम दोबारा, सेकंड फंक्शन हमारा 3x है, साइन फर्स्ट फंक्शन पहले उसका डिफ्रेंशिएशन किया 3x को एक वेरिएबल लेकर, साइन 3x का cos 3x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x, तो इट इज़ cos 3x मल्टीप्लाई बाई 3. तो इसका जो आंसर होगा वो मिलेगा हमें 3 cos 3x. तो आंसर आ गया इसका 3 cos 3x. इसी तरह से और इसका एग्जांपल ले रही हूँ मैं. अब हम कुछ ज़्यादा फंक्शन लिख लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू लॉग tan e की पावर x स्क्वायर. ओके, तो अब अगर इसका डिफ्रेंशिएशन मुझे करना है तो dy ओवर dx, सबसे पहला जो मेरा फंक्शन है डेट इज़ लॉग एंड अदर टर्म्स आर एक्ट एज x. देन डिफ्रेंशिएट log tan e की पावर x स्क्वायर, देन वी गेट 1 ओवर डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x इज tan 1 ओवर x. तो इस पूरी टर्म को x एज्यूम करो और log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 ओवर x. देयरफॉर डिफ्रेंशिएशन ऑफ log tan e की पावर x स्क्वायर इज 1 ओवर tan e रेज टू द पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो फंक्शन हमारा x की जगह था उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है, तो tan e की पावर x स्क्वायर. अब इसका तो हो चुका है 1 ओवर tan e की पावर x स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा. अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है tan e की पावर x स्क्वायर का, तो tan का डिफ्रेंशिएशन होगा पहले सीकेंड स्क्वायर और x की जगह अब क्या है यहाँ पर e की पावर x स्क्वायर, तो वो भी वैसे ही आएगा. tan e की पावर x स्क्वायर का हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर e रेज टू द पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब हम किस किस का कर चुके हैं, पहले log का किया फिर tan, एंड नेक्स्ट फंक्शन है ओवर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज e रेज टू द पावर x स्क्वायर. नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x स्क्वायर, दैट इज e की पावर x. तो 1 ओवर tan e रेज टू द पावर x स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर e रेज टू द पावर x स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x स्क्वायर इज e रेज टू द पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर. e रेज टू द पावर x स्क्वायर का हमने किया, x स्क्वायर का फिर बच गया, तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा अब दोबारा से 1 ओवर tan e रेज टू द पावर x स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर e रेज टू द पावर x स्क्वायर इंटू e रेज टू द पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x. बस इसको कंबाइन कर देंगे, जो आएगा वो आंसर. ठीक है. एंड इसका लास्ट एग्जांपल मैं एक ले रही हूँ. अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह से होता है, जैसे अब इसी में होता मान लो साइन की पावर 7 और 3x ये होता हमारे पास. अब यहाँ पर साइन 3x तो है लेकिन उसके साथ उसकी होल पावर भी है. कभी भी किसी फंक्शन की जब होल पावर होगी तो पहले हम बेस को x लेकर x की पावर n के फॉर्मूले से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n x रेज टू द पावर n-1.
तो अगर साइन 3x को अगर हमने x एज्यूम किया तो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा 7x रेज़ टू द पावर 6, इट मीन्स 7 साइन रेज़ टू द पावर 6 3x मल्टीप्लाई बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ बेस को हमने x एज्यूम किया था, उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। अब साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन होगा cos 3x इंटू 3x का डिफ्रेंशिएशन 3। तो नाउ अवर आंसर इज 7 इंटू 3 21 साइन रेज टू द पावर 6 3x इंटू कॉस 3x और उसका आंसर। ठीक है, तो अब आपने चेन रूल में क्या याद रखना है, जो फंक्शन पहले है उसका करते जाओ 1 बाय 1, जब तक हमारे फंक्शंस ख़त्म नहीं हो जाएंगे हम उसका डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे। अब साइन रेज टू द पावर 7 3x का करना था, तो पहले होल पावर है तो पहले हमें पावर का करना है, उसके बाद पावर का करना है x रेज टू द पावर n के फॉर्मूले से, बेस को x एज्यूम करके, उसके बाद उस बेस का दोबारा हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसके बाद हमें उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे पहले 5.2 वर्कशीट से। इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आई थिंक आप इसको कर सकते हैं अपने आप। पहले किसका होगा, अल्टीमेटली साइन का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और आप +1 में भी कर चुके हैं। तो आज के लिए आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ 5.2। ओके, बाय।